Good morning, students. Today we are going to discuss the fourth question regarding 3 marks. Fourth question, 3 marks, chapter 9, unit 8. And the topic is Green Revolution. Harit Kranti. The first thing in this notes is definition of green revolution. Large increase in crop production in developing countries achieved by use of artificial fertilizers, pesticides and seeds of high yielding varieties, HYVS, high yielding varieties. ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति क्या है? एक क्रांति जिससे क्रॉप के उत्पादन को बढ़ाने का अवसर देखा गया। कहां? क्रॉप का इंप्रूवमेंट कौन कंट्री में? डेवलपिंग कंट्रीज में। कैसे? तो 3 चीज अपनाकर। एक, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, दूसरा आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, और तीसरा बीज किसका? हाई यील्डिंग वैरायटीज प्लांट का। देन द 2 important general knowledge 1 marks question in this topic. Who is called father of green revolution? Dr. Norman E. Borlaug. Father of green revolution, Dr. Norman E. Borlaug. And who is called father of green revolution in India? Then the answer is Mankambu Sambasivam Swaminathan. Very hard to pronounce, so you can learn M.S. Swaminathan. 2 important 1 marks question. Green Revolution, father of Green Revolution, Borlaug, and father of Green Revolution in India, M.S. Swaminathan. Borlaug was the first scientist to introduce high-yielding variety of wheat plant, and he was determined to convert traditional agriculture into mechanized agriculture. He had high determination to introduce modern agricultural practice, and these two help billions of people to prevent starvation. Borlaug का 2 विचारधारा, एक हाई यील्डिंग वैरायटी गेहूं प्लांट को इंट्रोड्यूस करना और मन में ये भावना रखना कि मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से फायदा होगा, और सच में ऐसा हुआ और बिलियंस पीपुल के भूख को उन्होंने मिटाया। इसके लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिला 1970 में। एम.एस. स्वामीनाथन यही काम गेहूं के वैरायटी को इंट्रोड्यूस किए इंडिया में, इसलिए उनको इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। और उनका 2 और पक्ष पर वो थे, एक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक था प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास करो, नेचुरल रिसोर्स का यूज करके विकास करो, लेकिन ध्यान रहो इतना तरीका से यूज करो, इतना नियम से यूज करो कि अगला जनरेशन भी उसका उपयोग कर पाए। हदिया के नहीं यूज करना है, नॉर्मल तरीका से, लीगल तरीका से, तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंट विथ प्रिजर्वेशन, विथ कंजर्वेशन, तो ये होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और दूसरा उनका वकालत कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ जैविक विविधता। तो इस हिस्सा में डेफिनेशन है ग्रीन रेवोल्यूशन का, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में। चलो नेक्स्ट एरिया में आते हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1960 and then it was reorganized in 1965, which lasted to 1978. In Green Revolution, two high-yielding varieties dwarf wheat plants were introduced. The name was Lerma Rosso and Sonora 64. Dwarf high-yielding varieties of wheat plant Lerma Rosso and Sonora 64 was introduced in Indian climate. Some of the important features regarding Green Revolution are as follow. Number one, introduction of seeds of higher yielding varieties. Number two, better irrigation facilities. Number three, increased use of fertilizers. Number four, use of pesticide and weedicides. Number five, introduction of technology and machinery in agriculture. That means mechanized agriculture. ग्रीन रेवोल्यूशन में 5 मेन फीचर जो था वो था, पहला, बीज किसका यूज किया जाए, कौन पौधा का, तो हाई यील्डिंग वैरायटीज का बीज यूज किया जाए। दूसरा एम क्या था, दूसरा रीजन, कारण, फीचर्स, इरिगेशन के फैसिलिटी को बढ़ाना, मॉनसून के पानी पर भरोसा नहीं करना। और तीसरा, केमिकल आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स का यूज करना उपज को बढ़ाने के लिए, और कीटनाशक दवाई, इंसेक्टिसाइड, खरपतवार को मारने के लिए वीडीसाइड का यूज करना, ताकि उन वीड से, उन इंसेक्ट से क्रॉप को नुकसान ना हो। और एक बड़ा बात कि एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को शामिल करना, मशीनरी का यूज करना, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को बदलकर मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना। These were the features of Green Revolution. Let us discuss some advantages of Green Revolution. First advantage, increase in crop production. क्रॉप का उत्पाद बढ़ गया, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन, यही मकसद भी था और ये हुआ भी। दूसरा, फूड क्राइसिस इन इंडिया वाज सॉल्व्ड। फूड का जो, अनाज का जो कमी था इंडिया में, उसको दूर कर दिया गया। तीसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग practices or methods
नया नया टेक्निक का आना, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर का सहारा लेना, किसान को नया मॉडर्न तरीका सीखने का मौका मिलना, ये तीसरा एडवांटेज था ग्रीन रेवोल्यूशन का। फोर्थ, इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर, और इंडिया को वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर का स्थान मिला। और पांचवा, क्रिएटेड plenty of jobs not only to agricultural worker but also to the industrial worker। ग्रीन रेवोल्यूशन होने से नौकरी बढ़ा, रोजगार बढ़ा, केवल एग्रीकल्चर के वर्कर्स के लिए नहीं बल्कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री था उनका भी वर्कर को रोजगार मिला। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। ग्रीन रेवोल्यूशन का कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी दुनिया में आया। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आर: नंबर 1, इंक्रीज्ड टॉक्सिसिटी ऑफ प्लांट। नंबर 2, रिडक्शन इन नेचर एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट। Number 3, resulted in water pollution. Number 4, deficit in wild biodiversity around the globes. And number 5, poor farmers cannot afford high yielding variety seeds and machinery. Disadvantages क्या क्या रहा बच्चा लोग? उतना ज़्यादा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड यूज करने के चलते, फर्टिलाइजर के यूज करने के चलते प्लांट्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मात्रा बढ़ गया, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर जरूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो वो नेगेटिव इफेक्ट, जहर का काम करता है। तो मैक्सिमम यूज ऑफ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर के चलते प्लांट में टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर गया। जैसे खीर में चीनी ज्यादा भी मिला दोगे तो लोग चाट चाट के खा सकता है, लेकिन नमक के बारे में जरा सोच लो कि जरूरत से जितना चाहिए उससे कम तो भी बेकार, जितना चाहिए उससे जरा सा भी ज्यादा तो भी बेकार। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को नमक से ऐसा कंसीडर करके सोचो तो समझ में आएगा कि कुछ न्यूट्रिएंट्स है जिसका कंसंट्रेशन बढ़ाने से नेगेटिव इफेक्ट होता है। दूसरा, पेस्टिसाइड यूज करने से सॉइल का नेचर चेंज कर गया। सॉइल में जो दोस्त माइक्रोब था, राइजोबियम, अर्थवॉर्म, एनवायरमेंट में जो दोस्त तितली वगैरह थी पॉलिनेशन करने के लिए, उनका भी पॉपुलेशन डिक्रीज करने लगा। थर्ड, देखो क्या यूज हो रहा है, फर्टिलाइजर। और इकोलॉजी के सिलेबस में पढ़ोगे कि मैक्सिमम फर्टिलाइजर यूज करने से पानी में यूट्रोफिकेशन होने का चांस होता है। वाटर पोल्यूशन चैप्टर में जरूर तुम सुनोगे यूट्रोफिकेशन, और उसका कारण होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द वाटर। कहां से आया? खेत में जो डलाया वो बहकर तालाब वगैरह में आ गया। फिर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा? बायोमैग्निफिकेशन। ये टॉपिक भी वाटर पॉल्यूशन में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बायोमैग्निफिकेशन, बच्चा पेस्टिसाइड बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, तो जो डाला जाता है वो एनवायरनमेंट में सस्टेन कर जाता है, और वो जब पानी में शामिल होता है तो फूड चेन के द्वारा हार्म पहुंचाने का काम करता है। तो अभी तुम इतना ही लिख दो, कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का डिसएडवांटेज में आएगा। नेक्स्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन में केवल क्रॉप प्लांट का चिंता किया गया, अनाज का, पेट का चिंता, और बाकी पौधा हम लोग के लिए नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन हर पौधा में
कोई ना कोई विशेष गुण होता है। तो बायोडाइवर्सिटी में ईच एंड एवरी प्लांट्स, ईच एंड एवरी एनिमल्स आर इंपॉर्टेंट। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन में जो पौधा से फायदा मिला, जिससे हमको थोड़ा लाभ था, उसका ध्यान रखे और जंगली पौधा का चिंता करना छोड़ दिए, तो वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी में गिरावट आया। और सबसे बड़ा बात कि किसान, गरीब किसान कैसे खरीद पाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड? वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, उसके पास उतना पैसा ही नहीं है कि उस दाना को खरीदे जो हाई यील्डिंग वैरायटी का है और मशीन का यूज करे। ओके, तो आज तुम लोग 3 मार्क्स के लिए पढ़ा व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रुप सी में आने वाला क्वेश्चन। अगर नहीं आया तब तो 2 नाम तुमको याद रखना होगा, नॉर्मन ई बोरलॉग, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, और MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। कल हम लोग 2 और छोटा सा टॉपिक लेंगे, एक व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन और एक व्हाट इज SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। तो कल के क्लास में बायो फोर्टिफिकेशन और सिंगल सेल प्रोटीन पर डिस्कशन करेंगे। अभी तुम लोग कौन यूनिट में है? यूनिट 8। कौन चैप्टर में है? चैप्टर 9। और उसका आज तुम कितना नंबर का क्वेश्चन पढ़ा? चौथा क्वेश्चन पढ़ा। पहला कौन था? एनिमल हस्बेंड्री। दूसरा कौन था? एनिमल ब्रीडिंग। तीसरा कौन? प्लांट ब्रीडिंग। और चौथा आज जो सुना वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। थैंक यू।